Assalamu alaikum, dear students. Assalamu alaikum, dear students. In the previous class, we completed our poem Basketful of Moonlight. As per that completed poem, we have learned about the son and his feelings about his father. As per that completed poem, we came to know that the son wants to do something for his father. He wants to spend time with his father, and for spending his time with his father, he wanted to help his father to come back at home early in the evening. Same as we have seen some poetic devices, literary devices, and I told you that we have to take both the things simultaneously. Now, today we are going to see English workshop activities of that completed poem. Now, let's begin English workshop activities. Let's begin the activities. Here, the first activity of our English workshop is complete the following sentences with the help of the poem. यानी यहाँ हमें sentences को complete करना है. यानी ये completely factual base है और जो हमारे पास हमने poem देखा है उसी के base पर हमने fill करना है. The child wants to show small moons of light from. हमने देखा है from the city to the village. अब यहाँ पे टू हिज विलेज हमने करना है. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ यस स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस. द थर्ड sentence is the child wants a basket full of moonlight on. So here we have seen on loan. The child wants to light the dark route so that his father returns early. Now see the second activity. Write down the describing words used for the following nouns. अब हमने nouns भी देखा है लैंग्वेज स्टडीज में. Nouns हमने किस लिए इस्तेमाल किया था? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, जस्ट लाइक मून्स, रूट, विलेज, मॉर्निंग. तो यहाँ पे ये हमारे nouns दिए हुए हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड एक अभी टर्म इस्तेमाल की जा रही है किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए. यानी हमारे पास जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में अभी देखेंगे और 9th में हमने देखा भी है कि एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम किसे कहते हैं? अ वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन. यानी वो लफ्ज जो नाउन को डिस्क्राइब करे, यानी उसकी वजाहत करे कि वो किस तरह का हो, वो कहलाता है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो हियर एज पर द पोएम वी हैव गॉट व्हाट अबाउट द मून? स्मॉल मून, वी हैड सीन दैट. Same as about the root, tough root. Same as about the village, whole village, and morning, early morning. These are the describing words of these nouns. Now see the third activity. The child in the poem wants to solve the problems of his village. यानी जो बच्चा है वो अपने विलेज की जो मसाइल है उन्हें हल करना चाहता है. How can the child solve them with the following wishes? Answer in your notebook. यानी यहाँ जो तो विशेष दी हुई है उन विशेष के बेस पर हमने ये बताना है कि वो बच्चा कैसे उन मसाइल को हल कर सकता है. एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे पर्पस रहता है कि हम अपने उन सेंटेंसेस में अपनी जो थिंकिंग है उसका इस्तेमाल करके कुछ लिख पाए. अब यहाँ जो विश जो हमने देखी थी, क्या विश थी? गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight.
यानी अब इस विश के बेस पर जो बच्चा है वो किस तरह से जो विलेज के मसाइल हैं उन्हें हल कर सकता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ अपने सेंटेंसेस फॉर्म करना है। यू मे सी हियर, वी हैव सीन that the child wants to solve the problems of his village and he has requested to the moon for moonlight and seeds of moonlight in the large quantity। यानी इतना पार्ट हमने किस बेस पे लिया है, जो हमारी अभी पोएम को पढ़ने के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेस पर अभी हम आगे अपनी थिंकिंग दे रहे हैं। एज पर हिज ऑब्जर्वेशन इन द विलेज and his mental age, he thought that the problems of his village can be solved by sowing the moonlight and seeds of moonlight on the sides of the path। यानी यहाँ बताना मकसद क्या है, यहाँ आंसर बताना मकसद नहीं है, बल्कि आंसर को हमने फॉर्म कैसे करना है वो बताना है। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसके बेस पर हमने सिंपल से सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं और उसके बाद हमको अपनी थिंकिंग का यूज करना है और वो बच्चे की जो सोच थी उसका इस्तेमाल करते हुए आंसर देना है। क्योंकि ये इस तरह के जो आंसर्स है आपको डाइजेस्ट में भी ये सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। ये सेंटेंसेस हम जो भी हम समझ रहे हैं उसके बेस पर हम आपसे बता रहे हैं, आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। नाउ सी द सेकंड विश, आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली। यहाँ दूसरी विश थी उसकी, क्या किस बात की, कि वो जो था डार्क रूट को क्या करना चाहता था, रोशन करना चाहता था। और क्यों, क्योंकि ताकि उसके जो फादर है वो जल्दी वापस आए। अब ये विश को भी वो किस तरह से पूरा कर सकता, यानी जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है हम उसके बेस पर यू मे सी है, according to the poet, due to the dark route father returns late from his workplace, the child loves his father too much and he too wants to hear fairy tales and stories from his father in order to, यानी ये जो चीजें हमने लिया है ये as per our understanding from the poem। And then in order to enable his father returns early, the child requested to the moon for moonlight and seeds of moonlight in the large quantity as per his observation in the village and his mental age। He thought that his father can be returned early at home by sowing the moonlight and seeds of moonlight on the sides of the path। यानी यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें पोएम से मिली है उसका इस्तेमाल किया, फिर जो बच्चे की एक सोच है उसके मेंटल एज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज करते हुए जो भी बच्चे के एफर्ट्स होने वाले थे या बच्चा सोच रहा था उसको हमने सेंटेंसेस की शक्ल दी और इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं। See the fourth activity, pick out and write the lines from the poem that prove the following। यानी हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनको प्रूव करने वाली लाइन देना है पोएम से। See the statements, father reaches home late after dark, यानी फादर ताखीर से घर पहुंचते अंधेरा होने के बाद। इस लाइन को और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली लाइन हमने पोएम से देना है। यू मे सी हियर, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक। ये हमने जो लाइन ली है ये पोएम से ली है। और एक चीज यहाँ बताना हम चाह रहे हैं, यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए हैं। क्यों, क्योंकि हमने लैंग्वेज स्टडीज में देखा है कि जब भी हम किसी की कही हुई कोई बात को कहीं और रेफरेंस के तौर पे या किसी और जगह पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करते हैं, तो हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम बोर्ड एग्जाम्स में अगर 90, 95 क्रॉस करते हैं और उससे ज़्यादा सिक्योर करते हैं तो उस वक्त ये भी चीज़ें जो है वो नोट की जाती है। इन चीज़ों का भी हमारे जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है, इसलिए हमने इन्हें भी ध्यान रखना है। सी द सेकेंड स्टेटमेंट, ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर, यानी ये
स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली लाइन फ्रॉम द पोएम यू मे सी हियर, I too want to hear fairy tales. इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट, remove darkness and bring light among the darker paths. इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली लाइन, I want to light the dark road. यानी ये स्टेटमेंट, ये लाइन जो है आप ले सकते हैं इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. Now see the fifth activity. Write as many words as you can using full as suffix. Suffix जो लेटर्स हम लोग किसी वर्ड के बाद लगाते हैं और कोई दूसरा वर्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज सफिक्स. हमने 9th क्लास में भी देखा है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्रीफिक्सेस यानी वो लेटर्स जो हम किसी वर्ड से पहले लगाते हैं और कोई दूसरा वर्ड फॉर्म करते हैं, वो कहलाता है प्रीफिक्स. जनरली हम प्रीफिक्सेस अपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए करते हैं, जस्ट लाइक पॉसिबल. पॉसिबल को अपने अपोजिट आप बना सकते हैं इम्पॉसिबल बाय एडिंग आई एम. यानी यहाँ पे आई एम क्या हुआ, प्रीफिक्स. वैसे यहाँ सफिक्स हम किसे कह रहे हैं, वो लेटर्स जो किसी वर्ड के बाद हम ऐड करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है बास्केट फुल. यहाँ बास्केट एक वर्ड है और फुल उसमें ऐड हुआ है, ये फुल जो है दैट इज सफिक्स. इसी तरह से हमने और वर्ड्स फॉर्म करना है जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सफिक्स के. जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है बास्केटफुल और एक है बकेटफुल. इसी तरह से आप और भी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मे राइट केयरफुल, इसी तरह से हेल्पफुल, इसी तरह होपफुल, इसी तरह आप ले सकते हैं पेनफुल, और भी आप ले सकते हैं हार्मफुल, इसी तरह आप ले सकते हो वंडरफुल, और भी आप वर्ड ले सकते हो ब्यूटीफुल, इसी तरह आप लोगे मीनिंगफुल, और आप ले सकते हो जॉयफुल. यानी ये वर्ड्स हमने यहाँ पे सफिक्स को प्रूव यानी सफिक्स का ऐड करते हुए जो वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं. इसमें और भी आप ले सकते हो. यहाँ पे क्लियर क्या करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं. नाउ सी द सिक्स्थ एक्टिविटी, पिक आउट द एग्जांपल्स ऑफ एलिटरेशन एंड रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम. यहाँ पे एलिटरेशन एंड रिपीटेशन ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनका जिक्र और जिनके ताल्लुक से हमने एक्सप्लेनेशन के दौरान में समझा है. यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इनकी एग्जांपल्स देना है, जो पोएम में इस्तेमाल हुए हैं लाइंस वो देना है. यहाँ पे एलिटरेशन हमने किससे मुतालिक किससे एलिटरेशन से मुतालिक क्या कहा था कि जब पोइट क्या करते हैं, अपनी किसी लाइन में कोई मखसूस साउंड को रिपीट करते हैं, दो या दो से जायद मरतबा रिपीट करते हैं, वो कहलाता है एलिटरेशन. यू मे सी द एग्जाम्पल, गिव मी मूनलाइट. यहाँ पे आप देख रहे हैं मी मूनलाइट यानी एम साउंड इज रिपीटेड, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन. सी द सेकेंड वन, रिपीटेशन. रिपीटेशन हमने किसके लिए कहा था कि जब पोइट क्या करें, किसी मखसूस वर्ड को अपनी लाइन में दो या दो से जायद मरतबा रिपीट करें, तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज रिपीटेशन. यू सी द एग्जाम्पल, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल स्मॉल यानी वर्ड्स आर रिपीटेड, सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज रिपीटेशन.